Hello students, welcome to the class. Students, today I am going to start a new chapter of Python, that is functions. In this chapter we are going to learn about what is a function, how we can define a function, then how we can call or invoke a function. Then we will see different types of functions available in Python. So let's start the class. First, what do you mean by a function? Function क्या होता है? As you know students, a program is a set of instructions. Program में हम क्या लिखते हैं? We write instructions. And set of instructions में एक program में जो होता है, it can be an expression, it can be a combination of literals और variables. So normally क्या होता है, जब भी programs lengthy होता है या फिर large होता है, that means if a program is very large, so it is difficult to manage large programs. जो भी बड़ा प्रोग्राम होता है जिसमें सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें क्या होता है, प्रोग्राम को मैनेज करने, हैंडल करने में डिफ़िकल्टी होता है. टू अवॉइड दैट अ लार्जर प्रोग्राम इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स. उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उसको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है. दैट यूनिट इज़ कॉल्ड एज फंक्शंस. वो यूनिट को हम बोलते हैं फंक्शंस. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस. A function is a subprogram that acts on data and often returns a value. It is a named unit of a group of program statements. This unit can be invoked from other parts of the program. That means function में क्या होता है, it is a set of instructions जिसमें क्या होता है, एक बार हम एक यूनिट को लिख लेते हैं, फंक्शन को लिख लेते हैं, इट कैन बी इन्वोक्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम. नो नीड टू राइट द कोड अगेन एंड again. To see the syntax for defining a function, first you have to write the keyword def, then function name, any user defined name, then within parentheses you have to specify the parameters. Then after that colon will come, that will show it is a block. Then statements means body of the function. So students, hope the definition and syntax is clear to you. So function means it is a named unit of a group of program statements. यानी इसमें भी क्या होता है, group of program statements होता है जिस unit को हम क्या करते हैं, एक नाम देते हैं, that is called as function. So function में important क्या है, you have to start defining a function with the keyword def. Clear? So let's see what are the different types of functions available in Python. See on the screen. There are three types of functions. First one is built-in functions. In the built-in functions, these are predefined functions and are always available for use. यानी built-in functions क्या होता है, ये predefined है और ये जब चाहे यूज़र यूज़ कर सकता है. No need to write the code for built-in functions. Examples of built-in functions are len, int, input, etc. Many more functions are there. We have used len function, int function, input function already in the previous chapter. The second function type is functions defined in modules. These functions are predefined in particular modules and can only be used when corresponding module is imported. That means ये जो फंक्शन होता है एक मॉड्यूल के अंदर डिफाइन किया जाता है. जब भी आपको उस फंक्शन को यूज़ करना होता है, सो यू हैव टू इम्पोर्ट दैट मॉड्यूल. जब तक आप मॉड्यूल को इम्पोर्ट नहीं करेंगे प्रोग्राम में, यू कैनॉट यूज़ दैट फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ साइन फंक्शन, अगर हम साइन फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं, यू नीड टू इम्पोर्ट द मॉड्यूल मैथ इन योर प्रोग्राम. दैट मीन्स अ मॉड्यूल इज़ देयर मैथ. अगर आप साइन फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं, सो यू हैव टू इम्पोर्ट द मॉड्यूल दैट इज़ मैथ. थर्ड वन, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस. दीज आर डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर. एज प्रोग्रामर्स यू कैन क्रिएट योर ओन फंक्शंस. यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होता है, जो यूज़र अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक फंक्शन को डिफाइन करता है जिसमें सेट ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट्स होगा. एज ए प्रोग्रामर यू कैन क्रिएट योर ओन फंक्शंस. So these are the different types of functions available in Python. So let's see the example of a function. क्योंकि definition हमने देखा है, then we have seen the syntax. अब कैसे एक function को define करेंगे, we will try to understand with the help of an example. Students, see here, these are the two examples of a function. We'll see the first one. First you have to write the keyword def, def लिखना है.
then you have to specify the function name. Here the function name is cube. That means this function is made to find the cube of a number. Clear? Then see the parameter, the variables, the identifiers given within the parenthesis, that is called as parameter. So यहाँ पर parameter क्या है? X. Then what is the body of the function? Result equals to x. This is used as exponentiation. That means x raised to the power 3, because we have to find the cube of the number present in the variable x. Clear? Then you have to return the value, that is result that you have calculated, by using the return statement result. Same way, one more example is there. You can see the keyword is def, and here the function name is greet. Then you can see there is no parameter in the function greet. यहाँ पर पैरामीटर है, लेकिन यहाँ पर देखिए कोई भी पैरामीटर नहीं है. Then you can see in the body of this function greet, only one statement is there, that is print. What is printed? Hello everyone. That means when this function is called, when this function will be executed, you will get hello everyone on the screen. Now these are called as function header. ये जो complete हम लिखते हैं def function name parameters, these are called as function header. तो ये आपका function header हुआ, यहाँ पर ये आपका function header है. That means function header में क्या होगा? The keyword def will be present, then function name and parameters. Here these are called as parameters. That means a function may or may not have a parameter. फंक्शन में पैरामीटर्स हो सकता है या फिर विदाउट पैरामीटर भी आप फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं. देन हियर दीज आर द बॉडी ऑफ द फंक्शन. Here two statements are there, one is written statement and another one is computation expression, and here only one statement is there. So these are the body of the function. Clear? This is the written statement. As you can see, in the first example there is a written statement, but in the second example there is no written statement. समझ में आ रहा है? यानी कि फंक्शन में और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू, ये ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट होगा. फंक्शन में हैव अ रिटर्न स्टेटमेंट इफ इट इज़ रिटर्निंग एनी वैल्यू. अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है, दैट मीन्स आफ्टर कैलकुलेशन इट इज़ रिटर्निंग सम वैल्यू, देन देयर रिटर्न स्टेटमेंट विल कम इन दैट फंक्शन. बट इफ़ द फंक्शन इज़ नॉट डूइंग एनी कैलकुलेशन, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, जस्ट एक प्रॉम्प्ट, एक मैसेज प्रिंट हो रहा है. सो देयर इज़ नो नीड फॉर वेरिएबल्स और आइडेंटिफाइज, नो नीड फॉर कैलकुलेटिव एक्सप्रेशन. सो हियर नो नीड ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट. दैट मीन्स अ फंक्शन कैन कंटेन अ रिटर्न स्टेटमेंट और इट कैनॉट कंटेन अ रिटर्न स्टेटमेंट. तो रिटर्न स्टेटमेंट लेकिन अगर आप लिखते हैं, सो जस्ट यू हैव टू राइट रिटर्न. अगर आप इस तरह की फंक्शंस में भी रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, सो जस्ट आपको रिटर्न कीवर्ड लिखना होगा, देन आफ्टर दैट नथिंग विल कम. इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, और यू कैन अवॉइड राइटिंग रिटर्न ऑल्सो. क्लियर? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ फंक्शन. डेफ कीवर्ड, फंक्शन नेम, पैरामीटर्स. इट कैन बी वन और मोर देन वन पैरामीटर्स. एक से ज़्यादा पैरामीटर भी हो सकता है. देन दिस इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन. दिस इज द कैलकुलेशन पार्ट. Here this is the return statement. This here no return statement is there. Clear? Now I hope defining a function is clear to you. Now after defining a function, इस तरह की फंक्शन अगर आप प्रोग्राम में क्रिएट कर लेते हैं, now how you can call that function. अब उस फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे, how you can invoke that function. See here, if I want to call, if I want to invoke, or if I want to use a function, उसके लिए हमें क्या करना होता है? द सिंटैक्स फॉर कॉलिंग अ फंक्शन इज, फर्स्ट यू हैव टू राइट द फंक्शन नेम, देन विद इन पैरेंथेसिस you have to specify the values to be passed to argument. See here, this is the syntax for calling a function.
इफ आई वॉन्ट टू कॉल एनी फंक्शन यू हैव टू गिव द फंक्शन नेम, जिस फंक्शन को आपको कॉल करना है उस फंक्शन का नाम लिखना है, देन विद इन पैरेंथेसिस यू हैव टू गिव द वैल्यूज टू बी पास टू आर्ग्यूमेंट। इस जो पैरामीटर आप देते हैं उसके लिए आपको वैल्यू पास करना होता है व्हेन यू आर कॉलिंग अ फंक्शन। विल सी विद दिस एग्जांपल, सपोज इफ आई वांट टू कॉल द फंक्शन क्यूब, अगर हमें इस फंक्शन को कॉल करना है तो हम कैसे लिख सकते हैं? एज पर द सिंटैक्स, फर्स्ट यू हैव टू राइट द फंक्शन name, clear? Then you can give any value. If I give the value as 4, that means 4 is the argument that is passed to the parameter x. Clear? So इस तरीके से आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा भी you can call a function, आप इस तरीके से डायरेक्टली लिटरल दे सकते हैं, this is passing a literal. Then you can pass a variable also, that means instead of directly giving the value or literal, you can pass a variable. Suppose the variable is num. This is the first example for calling. Second one, suppose the variable is num. Num equals to 10. Now, while calling the function, I have to pass the parameter. I have to give an value. So, the value is stored in the variable num. So, I am passing the variable as argument. यहाँ पर देखिए आप डायरेक्टली लिटरल देते थे, लिटरल मीन्स यू आर डायरेक्टली गिविंग द वैल्यू। हियर इन द सेकेंड एग्जाम्पल, व्हाइल कॉलिंग अ फंक्शन क्यूब यू आर पासिंग अ वेरिएबल एज एन आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर देखिए वेरिएबल आर्ग्यूमेंट की तरह पास किया जा रहा है, दैट मीन्स नम में जो भी वैल्यू होगा, द वैल्यू पॉइंटेड बाय दिस वेरिएबल नम दैट विल बी पास टू द पैरामीटर एक्स। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। नाउ इफ़ यू वॉन्ट यूज़र टू गिव इनपुट, अगर आप यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं, देन यू वॉन्ट टू गिव दैट इनपुट एज एन आर्ग्यूमेंट, दैट मीन्स टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड पासिंग दैट एज एन आर्ग्यूमेंट। तो उसमें आप कैसे लिखेंगे? सेम अगर हम वेरिएबल लेते हैं नम इक्वल्स टू, आपको यूज़र से कुछ भी इनपुट करवाना है, सो यू हैव टू यूज़ द फंक्शन इनपुट। तो इनपुट के लिए आपको पता है जब आप वैल्यू पास करते हैं न्यूमरिक वैल्यू होगा, सो यू हैव टू कन्वर्ट ईदर इनटू इंटीजर और फ्लोट। पहले आपको इंटीजर या फिर फ्लोट पे कन्वर्ट करना होता है, देन आप इनपुट फंक्शन को यूज करेंगे। सी हियर यू आर गिवन द वेरिएबल नम इक्वल्स टू इंट, इनपुट एंटर अ नंबर, दैट मीन्स हियर यूजर विल बी आस्क्ड टू एंटर अ नंबर। एक नंबर पूछा जाएगा, जो भी नंबर एंटर होगा दैट विल बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू इंटीजर टाइप, क्योंकि यहाँ पर आप इंट फंक्शन यूज कर रहे हैं। क्लियर? अगर आप इंट नहीं लिखेंगे देन दैट नंबर विल बी रेड एज स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट। सो इंट पे कन्वर्ट होगा, देन इट विल बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल नम। नाउ while calling the function you are giving this variable num, that means you are asking the user to enter an input and that is passed as an argument. Next one, if I want, while calling a function, if I want to use inside another statement, that means calling a function inside another statement. Suppose the statement is print, एक स्टेटमेंट में, प्रोग्राम स्टेटमेंट के अंदर भी आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, दैट मीन्स प्रिंट के अंदर यू कैन राइट क्यूब ऑफ 3। इस तरीके से भी आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, दैट मीन्स यू आर कॉलिंग अ फंक्शन इनसाइड अनदर स्टेटमेंट। प्रिंट एक स्टेटमेंट है, इट इज़ ए प्रोग्राम स्टेटमेंट, प्रोग्राम स्टेटमेंट के अंदर आप एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, दैट इज करेक्ट। नाउ इफ आई वॉन्ट टू कॉल अ फंक्शन इनसाइड एन एक्सप्रेशन, यानी कि आप फंक्शन को कॉल करते हैं इनसाइड एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन होगा, कैलकुलेशन वाला स्टेटमेंट होगा, उसके अंदर भी आप डायरेक्टली फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। सपोज इफ आई वांट टू टेक डबल ऑफ दिस क्यूब, ये जो क्यूब फंक्शन में जो वैल्यू मिल रहा है, यू वांट टू टेक डबल ऑफ दैट क्यूब, आप उसको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। सो यू कैन राइट, यू कैन गिव एनी वेरिएबल नेम। Suppose if I give double underscore cube equals to 2 into cube of 3. This is an expression. यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन हो रहा है। इस एक्सप्रेशन के अंदर भी देखिए फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, वी आर कॉलिंग द फंक्शन क्यूब। तो यहाँ पर क्या होगा, द वैल्यू रिटर्न बाय दिस फंक्शन दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद 2 एंड इट विल बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल डबल अंडरस्कोर क्यूब। सो इस तरीके से आप फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। आप डायरेक्टली लिटरल दे सकते हैं,
यू कैन डायरेक्टली गिव अ वैल्यू, और आप एक वेरिएबल दे सकते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट। वेरिएबल में वैल्यू आप पहले से इनिशियलाइज कर देंगे एंड देन यू कैन पास दैट वेरिएबल। देन यू कैन आस्क द यूजर टू एंटर अ नंबर or any floating number and that number can be passed as an argument. Then you can use inside another statement. आप कोई भी और एक प्रोग्राम स्टेटमेंट के अंदर भी आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। देन यू कैन यूज फंक्शन कॉल इनसाइड अनदर एक्सप्रेशन। इस तरह के एक्सप्रेशन जिसमें कुछ कैलकुलेशन होता हो, उस तरह के एक्सप्रेशंस में भी आप डायरेक्टली फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप these points are clear to you. Students, next we are going to see what is the flow of execution in a function call. जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं, how the control flows. That means flow of execution means how the program statements are executed during program run. जब एक प्रोग्राम को आप रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो किस तरीके से कंट्रोल फ्लो होता है, कौन से स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होता है, कौन से स्टेटमेंट बाद में एग्जीक्यूट होता है, जिस प्रोग्राम में आप फंक्शंस को यूज़ करते हैं। विल सी विथ एन एग्जाम्पल, एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, सी हियर, दिस इज अ पाइथन प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स यूजिंग अ फंक्शन। यहाँ पर इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, यू आर फाइंडिंग द सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग अ function. In this program we will try to understand how the control flows in a program. Flow of execution means the order in which statements are executed during program run. So आप देखेंगे इस प्रोग्राम में सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, प्रोग्राम स्टेटमेंट, दैट इज द फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर है यहाँ पर, तो आपको लगेगा जब भी आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, बट इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि जब भी आप टॉप में भी फंक्शन को डिफाइन करते हैं बट नॉर्मली दिस फंक्शंस विल बी रेड बाय द इंटरप्रेटर, पाइथन इंटरप्रेटर, बट इट विल बी इग्नोर्ड अंटिल इट इज कॉल्ड। फंक्शन जब भी मिलता है इसको रीड किया जाएगा बट इट विल बी इग्नोर्ड अंटिल कॉल्ड। जब भी फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। सो द कंट्रोल विल डायरेक्टली स्टार्ट गो टू द मेन सेगमेंट ऑफ द प्रोग्राम, दैट मीन्स flow of execution starts with the main segment of a program. So main segment आपका क्या है प्रोग्राम का, ये है, this is the main segment of a program. So इस segment में the first line is num1 equals to float. So ये statement सबसे पहले execute होगा even though you have written function header at the top. फंक्शन हेडर लिखने से भी इट विल बी इग्नोर्ड अंटिल इट इज कॉल्ड, जब तक ये कॉल नहीं किया जाएगा ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो इट विल search for the main segment of the program, it will execute the first statement of the main segment, that is num1 equals to float input. Here what is happening, you asking the user to enter first number and that will be converted to float. जो भी number user enter करेगा that will be converted to float. For example, when you execute this program it will ask enter first number. Suppose the user enters the first number as 3, कीबोर्ड से 3 एंटर कर रहा है, दैट विल बी कन्वर्टेड टू फ्लोट, क्योंकि यहाँ पर हमने फ्लोट यूज किया है। सो इट विल बी कन्वर्टेड टू 3.0, ऑटोमेटिकली इट विल टेक डेसिमल, देन इट विल बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल num1. नाउ which statement will be executed next? After this it will execute the second statement, that is num2 equals to float. Again it is asking the user to enter second number. Suppose the second number is entered as 7, the second number is 7, it will be converted to 7.0 because you are converting to float type. अगर यहाँ पर int होता तो यहाँ पर directly 3 लिखते, यहाँ पर 7 लिखते, but float है, user is giving a single digit number, it will be converted to decimal number, so it will be stored in the variable num2. Clear? These two statements will be executed. After that where the control will go, it will go to the next line, third one, that is sum equals to calc sum, within parenthesis you are giving num1 comma num2. Here you can see you are calling the function calc sum here. जो calc sum हमने जो function यहाँ पर define किया था, function name is calc sum. जब भी function को आपको call करना होता है तो आप उसको function का नाम लिखना होता है, then within bracket आपको argument देना होता है. Clear? So here the arguments are num1 and num2. num1 और num2 क्या है, जो number user ने enter किया है through keyboard. Now that means when this statement is executed, the control will go to the function header. यहाँ पर जाके ये function header call होता है.
दैट मीन्स जब ये स्टेटमेंट पे कंट्रोल आएगा इट इज इन्वोकिंग द फंक्शन कैल्क सम, सो कंट्रोल विल गो टू द लाइन डेफ कैल्क सम, यहाँ पर कंट्रोल चला जाएगा, आर्ग्यूमेंट विल बी पास्ड टू द पैरामीटर x एंड y, दैट मीन्स num1 जो वैल्यू है वो किस में पास होगा, टू द वेरिएबल x, टू द पैरामीटर x, एंड num2 टू द पैरामीटर y. नाउ आफ्टर दिस नेक्स्ट कंट्रोल विल गो टू द फंक्शन बॉडी, क्योंकि अब फंक्शन जब कॉल किया गया है देन इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ द फंक्शन. सो बॉडी ऑफ द फंक्शन में सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, s इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, दैट मीन्स यू आर एडिंग द टू नंबर्स, जो वैल्यू आप पास कर रहे हैं एज आर्ग्यूमेंट टू द पैरामीटर x and y, that is added and stored in the variable s. Then here return statement is there, return s, that means whatever answer, whatever result you are getting, that is returned as a value. That means if this is added you will get the answer as 10.0, that means s will have the value 10.0, it will point to the value 10.0. So it will be returned. Return s means you are returning the value 10.0. Clear? So ये statements execute होने के बाद, ये तीनों statement execute होगा function का, then where the control will go, अब flow कहाँ पे होगा, then again it will come to here, come to this line calc sum. आपने function को यहाँ पर call किया गया था, you are getting a value 10.0, that value should be received by some variable, जो value यहाँ पर आपको return statement से मिल रहा है that should be kept somewhere. So you are giving a variable or an identifier on the left hand side. So जिस function में एक value return होता है, so while calling the function you have to give any identifier or variable name on the left hand side. Clear? So जिसमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होता है तो आप डायरेक्टली फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको पता है जब इस फंक्शन को आप कॉल करेंगे ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद यू विल गेट अ वैल्यू, सो दैट वैल्यू इज stored in the variable sum. Now you are printing sum of two given numbers is in the variable sum. Clear? So you will get the answer as sum of two given numbers is 10.0. Clear? So this, in this way flow of execution happens in a program. जब भी एक प्रोग्राम को रन करते हैं इस तरीके से कंट्रोल फ्लो होता है. नॉर्मली फंक्शन इग्नोर किया जाता है until and unless it is called. जैसे यहाँ पर देखिए थर्ड स्टेटमेंट में यहाँ पर कॉल हो रहा है, तो यहाँ पर जाके ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा. क्लियर स्टूडेंट्स? आफ्टर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर. आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर हमने पहले ही देखा है. फॉर एग्जाम्पल जैसा पहले एग्जाम्पल में हमने देखा था डेफ कैल्क सम. इफ यू राइट लाइक दिस डेफ कैल्क सम, तो यहाँ पर देखिए कौन सा पैरामीटर है, एक्स एंड वाई आर द पैरामीटर्स ऑफ द फंक्शन कैल्क सम. जब इस फंक्शन को कॉल किया जाता था कैल्क सम वी कॉल्ड बाई पासिंग द वैल्यू num1 एंड num2. इस तरीके से हमने वैल्यू पास किया था. नाउ दिस इज द फंक्शन हेडर एंड दिस इज द फंक्शन कॉलिंग. सो हियर these are the parameters, the values that are passed, that means num1 and num2, the values that are passed are called as argument. जो वैल्यू को हम पास करते हैं ड्यूरिंग फंक्शन कॉल, जब फंक्शन को कॉल करना होता है, फंक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है या फिर फंक्शन को इन्वोक करना होता है, तो जो वैल्यू हम पास करते हैं किसके लिए, पैरामीटर्स के लिए, दैट इज कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट और वी कॉल इट एज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं या फिर हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं या फिर और एक नाम से बोल सकते हैं एक्चुअल पैरामीटर. क्लियर? सो द वैल्यूज दैट आर पास्ड इज कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और एक्चुअल पैरामीटर. नाउ द वैल्यूज दैट आर रिसीव्ड, जो पैरामीटर में जो वैल्यू रिसीव होता है दैट इज कॉल्ड एज पैरामीटर्स. सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉर्मल आर्ग्यूमेंट और फॉर्मल पैरामीटर. क्लियर? दैट मीन्स द वैल्यूज दैट आर पास्ड आर कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट या फिर एक्चुअल पैरामीटर कह सकते हैं. द वैल्यूज दैट आर रिसीव्ड, यहाँ पर वैल्यू रिसीव कौन कर रहा है, एक्स एंड वाई, सो एक्स एंड वाई विल बी कॉल्ड एज फॉर्मल आर्ग्यूमेंट और
formal parameter, or we can call it as parameter. So these are the definition. It is important, sometimes it is asked as what is the difference between actual and formal parameter. Clear? Now if a function is returning any value, जैसे हमने देखा था functions may or may not return a value. So based on returning a value, what are the different types of functions? A value can be returned. जो value return करते हैं with the help of return statement, it can be a literal, it can be a variable, or it can be an expression. जो वैल्यू रिटर्न होता है बाय द फंक्शन, इट कैन बी अ लिटरल, दैट मीन्स यू कैन डायरेक्टली पास रिटर्न अ वैल्यू, दैट मीन्स सपोज इफ यू राइट रिटर्न 4, दैट मीन्स यू आर डायरेक्टली रिटर्निंग अ वैल्यू, दैट इज लिटरल. नाउ यू कैन रिटर्न अ वेरिएबल. रिटर्न स्टेटमेंट में आप वेरिएबल भी दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू गिव रिटर्न नम, नम इज ए वेरिएबल. सो इस तरीके से आप रिटर्न स्टेटमेंट में वेरिएबल को भी यूज कर सकते हैं. और यू कैन गिव एन एक्सप्रेशन इन द रिटर्न स्टेटमेंट. आप रिटर्न स्टेटमेंट में एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी बाई सी, इस तरीके से लिख सकते हैं. या फिर रिटर्न स्टेटमेंट में a इंटू 3, ये भी एक एक्सप्रेशन है जिसमें कुछ कैलकुलेशन हो रहा है. सो इस तरीके से आप रिटर्न स्टेटमेंट लिख सकते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज वेरिएबल और लिटरल विल कम. It can be an expression, or it can be a variable, or it can be a literal. So this is the return statement. Now it can return a multiple values also. यानी Python में जो functions होता है it can return multiple values, क्योंकि यहाँ पर देखिए single value return हो रहा है. यहाँ पर भी single value है, यहाँ पर भी single value return हो रहा है. इस expressions में भी क्या होता है, after calculation you will get a single value. That means you are returning a single value to the function call. Now it can return multiple values. Multiple values means more than one value भी return statement में दे सकते हैं. For example, if the function is squared, that means you want to find the square of the parameter x and y. यहाँ पर दो पैरामीटर है x and y. You want to take the square of this. Instead of calculation, directly you can give return statement and you can write x into x comma y into y. See here, this is a function. Function name is squared. Parameters are x and y. Instead of calculating and storing in some another variable, directly the calculation part is given in the return statement. That means expressions are given in the return statement, and you can see in the return statement you will get more than one value. That means this function squared is going to return multiple values. First value will be the square of the parameter x, and the second value will be the square of the parameter y. So this is all about functions call, functions returning any value. That means the function that returns a value, that is non-void function. जो भी function value return करता है, that will be called as non-void. Void means null or empty. And the function that is not returning any value, that is called as void function. इस तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हैं. जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है दैट मीन्स दैट विल बी कॉल्ड एज नॉन वॉइड, और जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, जैसा हमने देखा था ग्रीट फंक्शन जिसमें कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं था, उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, वॉइड फंक्शन. So students, I hope whatever we have seen in today's class regarding functions, how we can define a function, how we can call a function, then what is actual and formal parameters, it is clear to you. In the next class we will see what is the scope of variables, and we will try to solve the questions that are asked in CBSE related with this chapter functions. Till then, keep learning.